Hello all GATE CS aspirants. I'm Amit Goel. I welcome you all to the YouTube channel of IS Master. In the Master Concept series for GATE CS 2024, we are discussing the subject of compiler design. In the previous two sessions, we talked about the basics of syntax analysis. We discussed about the grammars in detail. We understood what the grammars are, then we discussed, how do we derive strings from the grammar using the parse tree method or the derivation method. Then we discussed how to remove ambiguity from the grammars. Then we discussed how to remove left recursion from the grammar, how to remove non-determinism from the grammar is all what we saw. This was all the basics. Now we are actually starting with the syntax analysis phase. That is, we'll start with the parsers in detail. We'll classify the parsers in this session. We'll also see two important parsers. Two of the parsers, I should not say, as far as the GATE exam is concerned, they are not very important, but we'll discuss two parsers in this session. We'll also see the terminology in this session. Okay? So let's see. So top-down parsers, the terminology wise, if we see, we first of all see the LL parsers. These are basically, the top-down parsers are generally called LL parsers also. Why it is that we will discuss first. The terminology part, as I said, we'll discuss first, and then we will discuss the classification part, and then we'll study with the two parsers. These two parsers are important with respect to the, to understanding the concept. With respect to the GATE exam, these two parsers are not very important, but for understanding, they are very, very important parsers, right? So let's see. So first of all, LL parsers, top-down parsers are also known as LL parsers. How? You see, the first L will stand for left to right. We always read left to right. That's the first thing. The second L stands for leftmost derivation. How? Let us see it with the help of an example. So when I say top-down parser, we'll start with the start symbol and then we will reach the string which we want. What is the string that we want to get is ID plus ID cross ID is the string that we want to achieve. ठीक बात है. तो ई से हम ID प्लस ID क्रॉस ID तक पहुंचेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है. तो अभी हम इसको कैसे करें, तो देखते हैं हम कैसे रीच करेंगे. हमने ऑलरेडी ये पार्स ट्री बनाया है. इसके लिए हम पहले E को रिप्लेस कर देंगे E प्लस T से, फिर हम T को रिप्लेस करेंगे T क्रॉस F से, और मतलब पार्स ट्री बना रहा हूं मैं पहले. हमने पहले भी पार्स ट्री बनाया है, इसी तरह से बनेगा, सिंपल है. अब एक्चुअल में होगा क्या ये डेरिवेशन कैसे होगा. अगर हम डेरिवेशन मेथड से जाएं तो कैसे डेरिवेशन हो रहा है वो समझने की कोशिश करेंगे. इसमें स्टेप वाइज अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, E विल बी रिप्लेस्ड विद E प्लस T. दिस इज स्टेप नंबर 1. देन दिस E विल बी रिप्लेस्ड विद T, T विल बी रिप्लेस्ड विद F, F विल बी रिप्लेस्ड विद ID. दीज आर द 4 steps that will happen. After that, this T will be replaced with T cross F. Now this T will be replaced with F, then F with ID, then F with ID again. This is the 8 steps. 8 steps will happen to generate this string. The yield will be ID plus ID cross ID. अब इसी चीज को हम अगर डेरिवेशन मेथड से करें तो देखते हैं, और वहां पर जब आप डेरिवेशन देखेंगे तो आप क्लियरली देख पाएंगे कि आप जनरेट कर रहे हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, दैट इज ID प्लस ID क्रॉस ID. आइए जरा समझते हैं इस बात को. हमने क्या किया, E को रिप्लेस किया E प्लस T से. फिर मैंने क्या कहा, इस E को T से रिप्लेस करना है, इस E को T से रिप्लेस करना है, इस T को F से रिप्लेस करना है, और फिर इस F को ID से रिप्लेस करना है. ठीक है. फिर इस T को रिप्लेस करना है T क्रॉस F से, ठीक है. फिर इस T को रिप्लेस करना है F से, और फिर F को ID से, फिर इस F को ID से, और फिर फाइनली इस F को ID से रिप्लेस कर देंगे. तो हमें फाइनली मिल जाएगा E प्लस ID क्रॉस ID. ठीक है. ऐसे किया, यही 8 स्टेप्स है. अब अगर हम इसको देखें तो आपको क्लियरली दिखेगा, ये हमने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन किया है. हमने पहले इसको रिप्लेस किया, लेफ्ट मोस्ट सिंबल, लेफ्ट मोस्ट सिंबल, लेफ्ट मोस्ट सिंबल. अब लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल यही रहेगा क्योंकि ये दोनों तो टर्मिनल्स हो गए. फिर
लेफ्ट मोस्ट सिंबल, ये दोनों टर्मिनल्स हैं, लेफ्ट मोस्ट सिंबल, ये दोनों टर्मिनल्स हैं, ये भी लेफ्ट मोस्ट सिंबल, क्योंकि ये सारे के सारे टर्मिनल्स हो गए। हमारा टर्मिनल नॉन टर्मिनल जो है वो लेफ्ट मोस्ट है, इसलिए हमने ये कहा इसे लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। इसलिए क्या हो गई मेरी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है, बहुत इजीली समझ में आ रहा है। कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए, इसमें तो कुछ भी डाउट है तो आप इजीली चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। यू कैन राइट योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स इन द यूट्यूब, ऑन द यूट्यूब वीडियो, और यू कैन ऑल्सो राइट डाउन ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बॉटम अप पार्सर्स को हम एलआर पार्सर बोलते हैं। एल किस चीज पे स्टैंड करेगा? अगेन टॉप डाउन पार्सर्स में एक चीज मैंने इंपॉर्टेंटली बोली, यू विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट सिंबल and then you will get the string after applying multiple productions. Now when we talk about bottom up parsers, there you will start with id plus id cross id, and from there through the help of reductions you will produce the e. Bottom up you will go into the tree. All right. So why they are known as LR parsers? Because again the reading is always left to right. I have already told you we are reading from left to right, and this R is basically rightmost derivation in reverse. This is rightmost derivation in reverse. Simple है। R is basically my rightmost derivation in reverse. अब ये कैसे है, क्यों है, ये हम समझेंगे। पहले अगेन फिर से हम वही स्ट्रिंग जनरेट करने की कोशिश करेंगे। id plus id plus id, e goes to e plus t, t goes to t cross f, f and f goes to id। पार्स ट्री बनाऊंगा तो यही बनेगा, लेकिन अब रिडक्शन के थ्रू इस बात को मैं कैसे समझूं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में समझ रहे हैं। देखिए रिडक्शन के रिस्पेक्ट में समझना है तो मुझे यहां पर मेरी स्ट्रिंग दी गई है id plus id क्रॉस id। मैंने क्या किया, इस id को कन्वर्ट किया, इस आईडी को कन्वर्ट किया एफ में, एफ को कन्वर्ट किया टी में, टी को कन्वर्ट किया ए में, राइट। ई इज ऑल्सो रिड्यूस, यस। सो टी को कन्वर्ट किया ई में। अब फर्दर रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं इस आई प्लस की, प्लस का कोई रिडक्शन नहीं है, आईडी को रिड्यूस करेंगे। अब हम आईडी को रिड्यूस किया फिर से एफ में, फिर एफ को रिड्यूस किया, अगेन स्टेप्स भी आप देख सकते हैं 1 2 एंड 3। फिर फोर्थ रिडक्शन में आईडी को एफ से रिड्यूस किया, एफ को रिड्यूस किया टी से। अब मैं क्या करूंगा, ई को लिया, प्लस को लिया और टी को लिया, इन तीनों से बना दिया ई। इन तीनों से बनाया ई। नो, not like that, just a second, t को f से किया and then again I have to do it with e, just a second, this has been reduced and then f with t and then t cross f with t, okay, all right. So slight typo here, I'll do that again. Just this much part is a bit problematic one, this is fine, all right. Again, the mistake which I did is basically the challenge with the parser also. मैंने क्या किया, id को f से रिप्लेस कर दिया, f को t से कर दिया और t को फिर से मैंने क्या कर दिया था, अब मैंने क्या किया, e प्लस t को e से रिप्लेस कर दिया था, जो कि अभी नहीं होना चाहिए। तो किस समय पे कौन सा रिडक्शन करना है, ये बेसिकली मेरा चैलेंज है एक बॉटम अप पार्सर के लिए। टॉप डाउन पार्सर के लिए क्या चैलेंज है कि कौन से प्रोडक्शन को एक्सपैंड करना है, और बॉटम अप पार्सर के लिए चैलेंज क्या है कि कौन से प्रोडक्शन को, किस रिडक्शन को मुझे परफॉर्म करना है, ये चैलेंज है। यहां पे मेरे वही चैलेंज मैंने वहीं पे गलती की कि क्या किया कि e प्लस टी से t बना दिया। अगर मैं पार्स ट्री को देखूं तो यहां पर e प्लस टी से t नहीं बन रहा है, e प्लस इस वाले t से बन रहा है, मैंने e प्लस टी इस वाले t से पहले रिड्यूस कर दिया था। तो किस समय पे रिडक्शन होगा ये जज करना, यही आर्ट है और यही उसकी प्रॉब्लम है जिसको उसे सॉल्व करना है बॉटम अप पार्सर को, ठीक है। तो ये रिडक्शन अभी नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, सो अगेन मैं यहां लिख देता हूं, फाइंडिंग द राइट एक्सपेंशन इज द चैलेंज।
And if I talk about the bottom up parser, finding the right reduction is the challenge. I hope I am clear. ठीक है, अब जरा देखिए यहां पे मैंने क्या किया, एफ को आईडी को एफ से किया, एफ को टी से किया, तो मैंने 2 स्टेप्स तो यहां पे भी कर दिए, 5वां स्टेप ये हो गया। अब इस आईडी को मैंने किससे रिप्लेस किया, एफ से, ये 6ठा स्टेप हो गया। उसके बाद टी क्रॉस एफ को मैं किससे रिड्यूस कर दूंगा, टी से, ये मेरा हो गया 7th स्टेप। और 8th स्टेप में मैं क्या करूंगा, इस ई को लूंगा और इस ई को लूंगा, इस ई को लूंगा और प्लस को लूंगा और टी को लूंगा, इससे मैं बना दूंगा ई प्लस टी से ई बन जाएगा, ई प्लस टी से ई बन जाएगा। ये है बेसिकली हमारा पार्स ट्री रिडक्शन के थ्रू 4, 5, 6, 7 ऐसे होंगे। ठीक है, कौन से समय पे कौन सा रिडक्शन कर रहा है, यही मेरा चैलेंज है। ठीक है, कब कौन सा रिडक्शन करना है वो मेरा चैलेंज बन जाता है और वहीं पर हमें समझना है चीजों को। अगर मैं यही रिडक्शन पहले ही कर देता, ई प्लस टी से ही ई प्रोड्यूस कर देता, तो ये मैं प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता। ये जो नॉलेज है हमें पार्सर को देनी है कि अभी भाई ये रिडक्शन नहीं करना है, आपको पहले टी क्रॉस एफ को टी में जाना है, फिर उस ई प्लस टी को आपको ई में कन्वर्ट करना है। ये चैलेंज है, ये चीज हमें पार्सर के अंदर समझानी है और वही हम आगे के लेक्चर्स में समझेंगे, पार्सर कैसे इस इंफॉर्मेशन को गैदर करता है और कैसे एक्ट करता है। आ रही है बात समझ में, सिंपल है। तो आइए अब अगर आगे ही समझते हैं। अब हम इसको राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स क्यों बोल रहे हैं, अभी देखते हैं। हम इस पूरे स्टेप को हम लिखते हैं। हमारे पास इनिशियली था आईडी प्लस क्रॉस आईडी। डेरिवेशन तो हमेशा आगे से होती है, हम पहले पीछे से करके देखते हैं क्या मिला हमें। आईडी प्लस आईडी क्रॉस आईडी, इससे पहले वाले स्टेप में हमने क्या किया, फिर हमने क्या किया, इसको एफ से रिप्लेस कर दिया। फिर इससे पहले हमने क्या किया, इसको टी से रिप्लेस कर दिया। फिर हमने क्या किया, इसको ई से रिप्लेस कर दिया। फिर हमने क्या किया, जितने रिडक्शंस हो सकते हैं वो हम करेंगे। ठीक है, एक बार में। अब हमने क्या किया, इस आईडी को एफ से रिप्लेस किया, फिर इस एफ को टी से रिप्लेस किया, फिर इस एफ को टी से रिप्लेस किया, फिर उसके बाद इस आईडी को, इस वाले आईडी को किससे रिप्लेस कर दिया हमने, एफ से। इस वाले आईडी को एफ से रिप्लेस किया। 6 स्टेप हो गए, 2 स्टेप्स हो रहे, ऊपर जगह नहीं है, मैं इसको रब कर देता हूं। ये बात हम और कहीं लिख देंगे, फाइंडिंग द राइट रिडक्शन हम यहां लिख देते हैं ताकि ये इंफॉर्मेशन मिस ना हो। फाइंडिंग द राइट रिडक्शन, फाइंडिंग द राइट रिडक्शन। ठीक है भाई। अब ई गोस टू ई प्लस टी क्रॉस एफ आ गया। अब मुझे कहा, मैं यहां पर हूं, यहां से मेरे को 7th स्टेप में क्या करना है, टी क्रॉस एफ को टी में रिड्यूस करना है। तो मिल गया ई प्लस टी और फिर ई प्लस टी को ई में रिड्यूस कर दिया। मैं स्टार्ट हुआ था ई से, तो हो तो यही रहा है रिडक्शन के थ्रू। तो रिवर्स तरीके से हो रहा है, तो इसलिए ये मेरा आर एक्सप्लेन हो गया रिवर्स। अब मुझे क्या एक्सप्लेन करना है, राइट मोस्ट डेरिवेशन है। देखिए राइट मोस्ट है क्या, पहले ई को रिप्लेस किया, ये राइट मोस्ट सिंबल था। फिर क्या किया है हमने, इस टी को एक्सपैंड करके टी क्रॉस एफ बनाया हुआ है। तो ये क्या हो गया, राइट मोस्ट सिंबल। फिर इस एफ से मैंने क्या बनाया है, आईडी। ठीक है, ये भी राइट मोस्ट सिंबल है, इस एफ को आईडी से रिप्लेस किया। फिर इस टी को मैंने क्या किया हुआ है, एफ से रिप्लेस किया हुआ है। ये भी राइट मोस्ट सिंबल है, क्योंकि राइट मोस्ट है कि लेफ्ट मोस्ट, जस्ट अ सेकंड, राइट मोस्ट सिंबल है, क्योंकि इधर राइट में कुछ नहीं है, इधर राइट में कुछ नहीं है, राइट मोस्ट सिंबल हो गया। तो टी को एफ से कर दिया, फिर राइट मोस्ट सिंबल यही निकल के आ रहा है, आईडी से रिप्लेस कर दिया। अब राइट में देखना जरा, आईडी क्रॉस आईडी प्लस, यहां तक कोई सिंबल ही नहीं है। राइट मोस्ट सिंबल से मतलब राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल की बात कर रहा हूं मैं, यहां पे राइट में कोई टर्मिनल नहीं है, तो ये वाला हो गया। ई आ जाता है, इस ई को रिप्लेस किया टी से, टी को रिप्लेस किया एफ से रिप्लेस किया आईडी से। तो हर बार हम क्या कर रहे हैं, राइट मोस्ट सिंबल को रिप्लेस कर रहे हैं, राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल को रिप्लेस कर रहे हैं, इसलिए हो गया राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स। क्यों, क्योंकि हम आईडी प्लस आईडी क्रॉस आईडी से ई तक गए हैं। तो राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स इस वजह से इसे बोला जाता है। 2 से 3 बार गेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एलआर का फुल फॉर्म क्या है, एलएल का फुल फॉर्म क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं,
बिल्कुल बेसिक सी चीज है, अगर आपको पूरा बेसिक याद रहता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इतने डिस्कशन के बाद तो ये चीज याद ही हो जाएगी कि राइटमोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स है। ऑलराइट, बेटर मैं हमेशा कहूंगा चीजें अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू करें तो आपको इजी रहेगा, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन अगर आप अपने सिर में लेके जाएंगे एग्जाम के अंदर, अगर आप अपने ब्रेन में बहुत सारा इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं तो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। आ रही है बात समझ में? सिंपल है, ठीक है। तो ये था बेसिकली, हमने टर्मिनोलॉजी को समझा, बॉटम अप पार्सर्स को हम LR क्यों बोलते हैं और टॉप डाउन पार्सर्स को हम LL क्यों बोलते हैं, ये हमें बेसिकली बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब हमें क्या समझना है, अब हमें ये समझना है कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ पार्सर्स क्या है, कैसे पार्सर्स को क्लासिफाई करते हैं, और उनमें से दो जो सिंपल पार्सर्स हैं, इंपॉर्टेंट पार्सर्स हैं, बट गेट के रिस्पेक्ट में इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्टली उनसे जनरली क्वेश्चन नहीं आता है, बट बहुत ही सिंपल सर इंपॉर्टेंट है, वैसे इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, हम उन्हें डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ पार्सर्स, तो पार्सर्स की बात करें तो हमारे पास टॉप डाउन भी होते हैं और हमारे पास में बॉटम अप भी होते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। टॉप डाउन भी होते हैं और बॉटम अप पार्सर्स भी होते हैं। टॉप डाउन पार्स बॉटम अप पार्सर्स को SR पार्सर भी बोला जाता है। SR स्टैंड्स फॉर शिफ्ट रिड्यूस पार्सर्स। शिफ्ट रिड्यूस पार्सर से मेरा क्या मतलब है, बेसिकली जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपको समझेगा, ये बेसिकली शिफ्ट और रिड्यूस टर्मिनोलॉजी स्टैक के रिस्पेक्ट में है। इसके अंदर शिफ्टिंग माने पॉप होता है और रिड्यूस माने पुश होता है, सॉरी, पॉप माने रिड्यूस होता है, ठीक है। जब हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे तब आप समझ पाएंगे, बट अभी के लिए ये समझ लीजिए कि बिकॉज ऑफ द स्टैक ऑपरेशंस इट इज नोन एज शिफ्ट रिड्यूस व्हिच इज नथिंग बट पुश एंड पॉप, ठीक है, ठीक है। अब ठीक है, जब हमने इधर ही शुरू कर दिया तो हम बात कर लेते हैं इसी साइड पे। बॉटम अप पार्सर्स में दो तरह के पार्सर्स हम डिस्कस करेंगे, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर्स और LR पार्सर्स। LR पार्सर्स में चार तरह के पार्सर डिस्कस होंगे, LR0, SLR1, LLR1 और CLR1। ये सारी डिटेल हम लोग जो है सारे पार्सर्स डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ऑलराइट। अब बात करें अगर इस साइड पे तो हमारे पास दो तरह के पार्सर्स हैं, विद फुल बैक ट्रैकिंग एंड विदाउट क्विक बैक ट्रैकिंग। टॉप डाउन पार्सर्स की बात करें, फुल बैक ट्रैकिंग का मतलब ब्रूट फोर्स अप्रोच जो है हमारी वो हो गई फुल बैक ट्रैकिंग। और अगर हम बात करें विदाउट बैक ट्रैकिंग तो हमारे पास में दो अप्रोचेस हो गए, रिकर्सिव डिसेंट अप्रोच और नॉन रिकर्सिव डिसेंट अप्रोच, व्हिच इज नथिंग बट LL1 पार्सर, व्हिच इज आल्सो नोन एज प्रेडिक्टिव पार्सर, व्हिच इज आल्सो नोन एज प्रेडिक्टिव पार्सर, ठीक है। ये बेसिक क्लासिफिकेशन है जो आपको क्लियर होना चाहिए। अब इसमें समझने वाली बातें एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा यहां पे, एंड देन वी विल डिस्कस टुडे ब्रूट फोर्स पार्सर एज वेल एज द रिकर्सिव डिसेंट पार्सर। दैट्स ऑल अबाउट। इस लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कोई भी पार्सर अगर आप ले लें, नो पार्सर कैन हैंडल एम्बिगुअस ग्रामर। एक्सेप्ट ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर। यही एक अकेला पार्सर है जो कि एम्बिगुअस ग्रामर को हैंडल कर लेगा, बाकी कोई भी पार्सर एम्बिगुअस ग्रामर्स को हैंडल नहीं करता। सिंपल है, कोई भी पार्सर एम्बिगुअस ग्रामर हैंडल नहीं कर सकता एक्सेप्ट ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इट कैन आल्सो हैंडल एम्बिगुअस ग्रामर, बाकी सभी अनएम्बिगुअस ग्रामर मतलब उसी को पार्स कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। और टॉप डाउन पार्सर्स को तो और भी दो दिक्कतें थी जो हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया। टॉप डाउन पार्सर को क्या दिक्कत थी, इट कैन नॉट आल्सो हैंडल, इफ वी टॉक अबाउट टॉप डाउन पार्सर्स दे कैन नॉट हैंडल एम्बिगुअस ग्रामर्स, दे कैन नॉट हैंडल लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर्स, they also cannot handle non-deterministic grammars। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। टॉप डाउन पार्सर एम्बिगुअस नहीं हैंडल कर सकते, वो तो इन जनरल है, कोई भी नहीं कर सकता सिर्फ ऑपरेटर प्रेसिडेंस के अलावा। लेफ्ट रिकर्शन से टॉप डाउन पार्सर्स को प्रॉब्लम होती है, क्यों? क्योंकि बार बार बैक ट्रेसिंग करनी पड़ती है, इसलिए प्रॉब्लम है। देन नॉन डिटरमिनिस्टिक ग्रामर्स में भी बार बार बैक ट्रेसिंग करनी पड़ती है, टॉप डाउन पार्सर्स को प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए हमारे पास में टॉप डाउन पार्सर ना तो एम्बिग्यूटी हैंडल करते हैं, ना लेफ्ट रिकर्शन और ना ही नॉन डिटरमिनिज्म। अगर किसी ग्रामर को किसी भी अगर हमें टॉप डाउन पार्सर करनी है,
टॉप डाउन पार्सिंग करनी है तो यू हैव टू एंश्योर योर ग्रामर इज अनएम्बिगुअस, यू हैव टू एंश्योर दैट योर ग्रामर डज नॉट हैव लेफ्ट रिकर्शन, यू हैव टू एंश्योर दैट योर ग्रामर डज नॉट हैव नॉन डिटर्मिनिज्म। अगर ये तीनों चीजें सेटिस्फाइड हैं तभी मैं टॉप डाउन पार्सर बना सकता हूं, अदरवाइज मैं टॉप डाउन पार्सर नहीं बना सकता। सिंपल है, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई कंफ्यूजन का कोई स्कोप नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और ठीक है, अब बात करते हैं हम सबसे पहले ब्रूट फोर्स वाले की, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन है, अभी हम धीरे धीरे करके अगले कुछ लेक्चर्स में हम ब्रूट फोर्स अप्रोच और रिकर्सिव डिसेंट पार्सर आज ही खत्म कर देंगे। LL1 पार्सर पे हम 3 लेक्चर्स लेंगे, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पे 1 लेक्चर लेंगे, LR0 पे 2 लेक्चर्स लेंगे, SLR1 पे 1 लेक्चर लेंगे, LLR1 पे 1 लेंगे, CLR1 पे 1 लेंगे और एक फाइनली कंक्लूजन रखेंगे सभी पार्सर्स का, जिसमें हम गिवन अ ग्रामर हम क्लासिफाई कर पाएंगे किस टाइप की ग्रामर है बेस्ड अपॉन दिस पार्सर्स क्लासिफिकेशन। ये बेसिकली हम करने वाले हैं अगले कुछ लेक्चर्स के अंदर, यू नो, ये मेजर पोर्शन है। इनफैक्ट आपको मैं कहूं तो दिस इज बेसिकली पार्सर्स आर द हार्ट ऑफ द कंपाइलर एंड दिस एंटायर पेज इज द हार्ट ऑफ द गेट एग्जाम एज फार एज कंपाइलर डिजाइन इज कंसर्न। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलेंगे। आ रही है बात समझ में? सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। बात करें ब्रूट फोर्स अप्रोच की, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच वही अप्रोच है जो हमने अभी पिछले लेक्चर में डिस्कस करी थी। जैसे मान लो मैंने आपको स्ट्रिंग दे दी A goes to A अल्फा बीटा, तो आपको ये याद होगा कि क्या करना था, मुझे क्या जनरेट करना था। मान लो बीटा अल्फा की पावर 4 प्रोड्यूस करना है, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या करेगी, A को रिप्लेस करेगी A अल्फा से, मान लीजिए उसके बाद उसने A को बीटा से रिप्लेस कर दिया, इसको मिला बीटा अल्फा, इसको पता समझ में आया कि मैंने गलत एक्सपेंशन कर दिया है, तो ये नेक्स्ट स्टेप में जाएगा, फिर क्या करेगा, A को A अल्फा से रिप्लेस करेगा, फिर क्या करेगा, फिर को A को A अल्फा से रिप्लेस करेगा, फिर फाइनली बीटा से रिप्लेस कर देगा। इस बार मिलेगा इसे बीटा अल्फा की पावर 2, जो कि फिर से मैचिंग नहीं हुई, फिर से जाएगा, फिर से एक पीछे जाएगा, A goes to A अल्फा तो इसने पहले ही किया था, फिर A goes to A अल्फा इसने पहले ही किया था, इस स्टेप में फिर से A goes to A अल्फा करके नेक्स्ट स्टेप में बीटा करेगा, इसे मिलेगा बीटा अल्फा की पावर 3। फिर प्रॉब्लम है, अगली बार क्या करेगा, ये इस स्टेप में जो गड़बड़ इसने की इसको रिमूव करेगा और यहाँ पे A को A अल्फा से रिप्लेस करके फाइनली इस वाले A को बीटा से रिप्लेस करेगा, ठीक है। फाइनली इस वाले A को बीटा से रिप्लेस करेगा, मतलब ओवरऑल हमें कैसे दिखेगी चीजें, ओवरऑल कैसे दिखेंगी चीजें, तो ये बेसिकली हमारा पूरा प्रोसेस है, यू नो, ब्रूट फोर्स अप्रोच, जिसमें हम सारे पार्ट्स को देखते हैं और यू नो बार बार बैक ट्रेसिंग करते रहते हैं। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच इज बेसिकली बैक ट्रेसिंग। ब्रूट फोर्स अप्रोच के अंदर मुझे बार बार बैक ट्रेसिंग की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। ऑल्दो मैंने यहां पर आपको एग्जांपल ले लिया लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर का, जो कि you know that might be a problem for the you know all the that is a problem for all the you know kind of top down parsers, but ठीक है, मैं यहां पे आपको ये नहीं समझाना चाह रहा हूं कि you know ये ग्रामर सही है कि नहीं है, मैं यहां पर आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि बेसिकली बैक ट्रेसिंग की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। गड़बड़ हो जाएगी तो आप दोबारा बैक ट्रेस करके वो करेंगे, ठीक है। यहां पे रीजन बैक ट्रेसिंग का दैट इज बिकॉज ऑफ द लेफ्ट रिकर्शन, बट यू नो इवन इफ अगर आप कोई गलत पाथ लेते हैं तो आपको वापस जाना पड़ेगा, ये बेसिकली मैं समझाना चाह रहा हूं इस एग्जांपल के थ्रू। तो बैक ट्रेसिंग में क्या करेंगे, आप एक्सपेंशंस करते जाएंगे, जब आपको राइट स्ट्रिंग मिल जाएगी तब आप रुक जाएंगे, उसके बाद अदरवाइज आप बार बार बैक ट्रेस करके चीजों को सही करेंगे। दैट इज ऑल व्हाट हैपेंस, ठीक है। बात करते हैं रिकर्सिव डिसेंट पार्सर की। रिकर्सिव डिसेंट पार्सर जो है बहुत सिंपल पार्सर है, इसके अंदर जो है बैक ट्रैकिंग नहीं होती है। रिकर्सिव डिसेंट पार्सर में हम विल राइट अ फंक्शन फॉर ईच वेरिएबल इन द ग्रामर। जितने भी वेरिएबल्स हैं ग्रामर के अंदर हम सबके लिए क्या करेंगे, एक एक फंक्शन लिखते चले जाएंगे। विल राइट अ फंक्शन फॉर ईच वेरिएबल इन द ग्रामर, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर मल्टीपल प्रोडक्शंस है उस वेरिएबल के लिए तो हम क्या रखेंगे, उन सभी के सभी प्रोडक्शंस को आर रिटन यूजिंग द इफ एल्स और द स्विच केस। इफ एल्स और स्विच केस का यूज करके हम उन मल्टीपल प्रोडक्शंस को लिख देंगे। मल्टीपल प्रोडक्शंस फॉर अ वेरिएबल आर रिटन यूजिंग इफ एल्स और स्विच केस। ये सिंपल सा फैक्ट है, ये दोनों बातें समझ में आती हैं, ठीक है। एग्जांपल से और अच्छे से समझेंगे आप, यू डोंट नीड टू वरी राइट नाउ। फंक्शन कॉल्स आर स्टार्टेड फ्रॉम मेन, ठीक है। अगेन मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं ये पॉइंट, ब्रूट फोर्स अप्रोच में मैंने जो एग्जांपल लिया वो आपको ऐसा लग सकता है कि उसके अंदर लेफ्ट रिकर्शन है, तो अगेन मैं यहां पे ये नहीं बताना चाहता हूं कि लेफ्ट रिकर्सिव लिया है मैंने, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बैक ट्रेसिंग कैसे होती है, इसके लिए मैंने वो एग्जांपल लिया, राइट। मतलब बेसिकली ये बताना चाहता हूं कुछ गड़बड़ हो गई तो आप फिर से बैक ट्रेस करके वापस जाएंगे, सिंपल बात है।
आगे बढ़ते हैं। फंक्शन कॉल्स आर स्टार्टेड फ्रॉम मेन। फंक्शन कॉल्स जो होती हैं वो मेन फंक्शन से स्टार्ट की जाती हैं और it is only using OS stack and no separate stack is required। इसमें सिर्फ OS की स्टैक ही यूज होगी, सेपरेट स्टैक नहीं चाहिएगी। ठीक है, अभी तो हमने सारे पॉइंट समझ लिए, अब ये एक्चुअली है कैसा, दिखता कैसा है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे, देखते हैं। ठीक है, हम इन पॉइंट्स पे एक बार दोबारा भी आ जाएंगे, एक बार पहले एग्जांपल समझ लेते हैं जिससे आपको बहुत क्लियरली समझ में आए चीजें। ठीक है, ऑलराइट। सो अगर आप इसको देखें रिकर्सिव डिसेंट पार्सर को, तो अगेन जब भी कोई पार्सर की बात होगी तो एक ग्रामर तो मुझे देनी पड़ेगी। ये है हमारी ग्रामर, आई गोज टू आई डैश एंड आई डैश गोज टू प्लस आई डैश एंड एप्सिलॉन। अब आपको क्या करना है, आपको ग्रामर, इस ग्रामर के कोरस्पॉन्डिंग आपको नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, हमेशा आप स्टार्ट करेंगे मेन फंक्शन से। मेन फंक्शन क्या करेगा, मेन फंक्शन क्या कॉल कर देगा, स्टार्ट सिंबल वाले फंक्शन को कॉल कर देगा और फाइनली अगर इसे डॉलर मिल जाता है, एल क्या है बेसिकली द करंट कैरेक्टर, जो मेरी स्ट्रिंग है वो मैं एक इनपुट बफर में रखूंगा। मान लीजिए मेरी स्ट्रिंग है आई प्लस आई एंड हमेशा स्ट्रिंग मेरी खत्म हो गई, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या लगा देता हूं, एंड में डॉलर लगा देता हूं। ठीक है, अगर मेरे को एल जो है फाइनली मेरा डॉलर बन गया है, जब मैं मेन फंक्शन पे वापस आ गया तो मैं बोलूंगा पार्सिंग मेरी सक्सेसफुल है, ये मेरा हो गया मेन फंक्शन। मान लीजिए मैं इस लाइन को बोलता हूं M1, दिस इज M2, दिस इज M3, दिस इज M4, दिस इज M5, दिस इज M6। ठीक है, फिर ये जो है मैच फंक्शन क्या करता है, मैचिंग करता है। अगर मैं इसको जो भी कैरेक्टर पास करूंगा वो चेक करता है कि जो मेरा करंट कैरेक्टर है वो टी से जो मैंने कैरेक्टर पास किया है उससे मैच कर रहा है कि नहीं, कर जाता है तो ये नेक्स्ट कैरेक्टर पे पॉइंट करने लगता है, एल बिकम्स इक्वल्स टू गेट कैर। ठीक है, एल्स अदरवाइज अगर ये मैचिंग ही नहीं हो पाती है तो ये बोल देता है एरर है, मतलब द स्ट्रिंग कैन नॉट बी जनरेटेड। ये मेरा मैच फंक्शन हो गया। यहां तक समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं ई का एक्सप्लेनेशन, देखते हैं ई क्या है, ई कैसे बनेगा इसको देख करके। यहां पर टर्मिनल क्या है हमारे पास में आई, इफ एल मैचेस आई तो हम क्या करेंगे, मैच आई, आई हैज बीन मैच्ड। मैच आई करने से क्या होगा, फिर से एक बार चेकिंग हो जाएगी कि आई से मैचिंग हो गई है और उसके बाद वो क्या करेगा, ई डैश को कॉल कर देगा क्योंकि आई के बाद ई डैश है। और मैचिंग जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैच फंक्शन क्या करेगा, हमारे पॉइंटर को आगे मूव कर देगा। वैसे ही करते हैं हम लोग, प्लस पे मूव हो जाएंगे। ठीक है, तो ई डैश हमारा कॉल हो गया। और ई डैश क्या करता है, ई डैश हम देखें तो प्लस और आई को मैच करना है, तो क्या करेगा ई डैश, इफ एल इज इक्वल टू प्लस, अगर मेरा करंट सिंबल प्लस है तो मैच आई करेंगे। मैच आई करने का क्या मतलब है, क्या मेरा करंट सिंबल प्लस है और आगे मूव कर जाऊंगा, फिर मैं चेक करूंगा मेरा करंट नेक्स्ट सिंबल आई है कि नहीं है, क्यों, प्लस के बाद आई लिखा हुआ है। एंड देन फाइनली मैं कह रहा हूं ई डैश पे चला जाऊंगा, ई डैश को कॉल कर दूंगा क्योंकि ई डैश आ गया आगे से। अगर मेरा सिंबल प्लस नहीं है, अगर मेरा पहला सिंबल प्लस नहीं है तो सिंबली क्या मैं करूंगा, रिटर्न कर दूंगा। एल्स आप इस केस में क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। एप्सिलॉन है तो कुछ भी नहीं है, एल्स रिटर्न कर रहे हैं। एल्स आप इसमें सिंपली रिटर्न कर रहे हैं, सिंपल है भाई। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, तो हम वापस से एक बार हम पीछे अगर जाएं तो इनमें से कौन से पॉइंट्स को हमने देख लिया है, आप देखें हमने क्या देखा, फंक्शन इज रिटन फॉर ईच वेरिएबल इन द ग्रामर, यू कैन सी द फंक्शन फॉर ई एंड ई डैश, दीज आर द ओनली टू नॉन टर्मिनल्स इन दिस केस। तो दिस पॉइंट हैज बीन एक्सप्लेन्ड अगेन। मल्टीपल प्रोडक्शंस फॉर अ वेरिएबल आर रिटन यूजिंग द इफ एल्स और स्विच केस। अगर आप देखें ई डैश के लिए हमारे पास दो प्रोडक्शंस थी, ई डैश के लिए हमारे पास दो प्रोडक्शंस थी, दोनों प्रोडक्शंस को मैंने इफ एल्स के थ्रू लिख दिया है। और ज्यादा होती है तो मैं स्विच केस लगा देता, नहीं तो इफ एल्स भी लगा सकता हूं। सिंपल है, ये वाला पॉइंट भी एक्सप्लेन हो गया। फंक्शन कॉल्स आर स्टार्टेड फ्रॉम मेन, मेन से हम फंक्शन कॉल को स्टार्ट करेंगे यहां से। लास्ट पॉइंट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम स्टैक वाला, वो अभी समझ में आ जाएगा। लास्ट पॉइंट मैंने क्या बोला, वी आर यूजिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम स्टैक एंड वी आर नॉट यूजिंग एनी अदर स्टैक। ये पॉइंट मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको कैसे करेंगे। मान लीजिए मैंने स्ट्रिंग ले ली आई प्लस आई डॉलर, जो कि मुझे चेक करना है क्या ये ग्रामर प्रोड्यूस कर सकती है कि नहीं। अगर पार्स ट्री मेथड से जाऊं तो सिंपल सी बात है, माई ई इज राइट नाउ ई विल प्रोड्यूस आई ई डैश एंड ई डैश विल प्रोड्यूस प्लस आई ई plus I e dash. Now this e dash will go to epsilon. I can produce I plus I. This is feasible. तो इसका आंसर भी यस आना चाहिए। कैसे आएगा जरा देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मेन फंक्शन से। मैं हर लाइन को नंबर दे देता हूं। इसका नंबर हो गया M1 से M6, इसका नंबर दे देते हैं E1, E2, E3, E4, E5, E6। इसका नंबर हो गया, इसको E-1 लिख देता हूं, E-1, E-2, E- मतलब E- से कंफ्यूजन हो रहा है, F लिख देते हैं इसका नाम।
मतलब भाई अगेन ज़्यादा लिखना पड़ेगा, इसको सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। इसको F1 लिख देता हूँ, इसको F2 लिख देता हूँ, इसको F3 लिख देता हूँ, इसको F4 लिख देता हूँ, इसको F5, इसको F6, इसको F7, इसको F8, इसको F9। मान लीजिए ये नंबरिंग कर दी मैंने। क्यों कर रहा हूँ मैं नंबरिंग? क्योंकि अगर फंक्शन कॉल्स हो रहे हैं बार बार तो मुझे पता होना चाहिए मैं वापस कहाँ जाना चाहता हूँ। एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में चला गया, वापस रिटर्न भी तो करना है, मुझे लाइन नंबर पता होगा तो मैं रिटर्न कर जाऊंगा। ठीक है, कंटेक्स्ट स्विचिंग के टाइम पे, राइट? ऑलराइट, सो इनिशियली आई स्टार्टेड विद द मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में हमने कॉल किया ई को। इनिशियली माय पॉइंटर इज एट आई। ई को कॉल किया, ई के पास गए हम, ई के पास गए तो यहां आ गए। ई के बाद हमने देखा इफ एल इज इक्वल्स टू आई। क्या मेरा फर्स्ट सिंबल आई है? इनिशियली मैंने एल को पहले ही आई पे सेट कर दिया है, एल इक्वल्स टू गेट केयर से। तो मैंने किया मैच आई। मैच आई करने से क्या होगा? आई से आई मैच हो जाएगा, आगे मूव कर जाएगा, तो मेरा पॉइंटर विल मूव टू दिस लोकेशन नाउ। माय पॉइंटर हैज मूव टू दिस लोकेशन नाउ। ठीक है, नाउ उसके बाद ये क्या करेगा? ई डैश को कॉल कर देगा। ई डैश को इसने कॉल कर दिया तो नेक्स्ट लाइन कौन सी इंप्लीमेंट करनी है? E6। ठीक है, तो मेन फंक्शन जो है अगर मैं स्टैक में लिखूं तो मेन फंक्शन हैज टू, मेन फंक्शन को मैंने स्टैक में डाल दिया एंड आई हैव टू स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग फ्रॉम E6 लाइन। नाउ आई एम एट ई डैश। ई डैश पे गया मैं, अगर ई डैश पे फर्स्ट लाइन क्या कहती है? इफ एल इज इक्वल्स टू प्लस। क्या एल मेरा प्लस है? यस है। तब क्या करूं मैं? एल मेरा प्लस है कि नहीं है? बिल्कुल है। अगर प्लस है तो मेरे को क्या करना है? मैच प्लस एंड मैच आई। जब मैं मैच प्लस करूंगा आई विल मूव टू द नेक्स्ट लोकेशन, क्योंकि प्लस मैच हो जाएगा। अब मैच आई करने से क्या होगा? आई भी मैच हो जाएगा, तो आई विल मूव टू द नेक्स्ट लोकेशन। आई विल कम हियर, माय पॉइंटर विल कम ओवर हियर। My pointer has come over here. Now I am at $, and I have now called E dash, right? अब मैंने E dash को कॉल कर दिया, तो मैं जब रिटर्न करूंगा तो कहां पे आऊंगा? एल्स में तो जाऊंगा नहीं, रिटर्न पे भी नहीं जाऊंगा, फाइनली F9 पे रिटर्न करूंगा। तो मैं क्या कर दूंगा? E dash फंक्शन में मुझे जस्ट अ सेकेंड, नो, दिस वाज नॉट मेन फंक्शन का E6, जस्ट अ सेकेंड, यहां पे एक माइनर सा मिस्टेक है। मेन फंक्शन में तो हम लोग M6 पे रिटर्न करेंगे। मेन फंक्शन की अगर हम बात करें, जैसे सेकंड स्लाइड टाइपो हियर, मेन फंक्शन पे हमने क्या किया? हमने ई डैश पे छोड़ा था इसे, हमें M4 से इंप्लीमेंटेशन करना है। मेन फंक्शन में M4 से इंप्लीमेंटेशन करेंगे। एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं जिससे कंफ्यूजन ना रहे। हमने मेन पे ई को कॉल किया था एंड देन वी मूव टू ई, तो हमें नेक्स्ट लाइन M4 इंप्लीमेंट करनी है, तो मेन पे तो हम M4 से इंप्लीमेंटेशन करेंगे। फिर हम जाए ई फंक्शन के अंदर। ई फंक्शन के अंदर क्या लिख दिया मैंने? यहां पर E6 पे आना है, यहां ई पे E6 में आएंगे हम। ई पे E6 पे आएंगे। क्यों आएंगे भाई ई पे E6 पे? क्योंकि हमने क्या किया? ये मैच किया, ये मैच किया, ये सही था, ये सही था, ई डैश को कॉल कर दिया, उसके बाद तो फिर फाइनली E6 ही बचा। ई में E6 को इंप्लीमेंट करेंगे। फिर हम ई डैश पे आ गए। ई डैश पे आने के बाद सीधा F9 बचा है, F9 को इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स हैं जो कि स्टैक में स्टोर होते जा रहे हैं। ठीक है, बेसिकली हमने यहां तक इंप्लीमेंट कर दिया, उसके बाद एल्स पार्ट में जाना नहीं है, तो F9 पे चले जाएंगे। अब ई डैश जब कॉल हुआ, ई डैश जब कॉल हुआ, जब ई डैश कॉल हो गया, यहां पर देखिए क्या प्लस है या एल प्लस है? नहीं, मेरा $, है। एल्स में जाऊंगा, रिटर्न कर जाऊंगा, सीधा रिटर्न किया। रिटर्न करने के बाद कहां जाऊंगा? ई डैश के F9 पे। F9 पे कुछ है नहीं, फिर रिटर्न कर गया। ई के E6 पे, E6 पे भी कुछ नहीं है, रिटर्न कर गया। फिर मेन के M4 पे रिटर्न कर गया। M4 पे क्या लिखा है? इफ एल इज इक्वल्स टू $। क्या $? है? बिल्कुल है कि नहीं है? बिल्कुल है। इफ एल इज इक्वल्स टू $, यस बिल्कुल है। अगर एल $, है तो मैं क्या बोल रहा हूं? पार्सिंग इज सक्सेसफुल, मतलब कि ये स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है। बहुत सिंपल है। हो गया कि नहीं हो गया? अब अगर मान लो मैं आपको एक स्ट्रिंग देता हूं जो जनरेट नहीं हो सकती है, मान लीजिए मैं स्ट्रिंग आपको चेंज कर देता हूं। आपकी स्ट्रिंग है यहां पर i प्लस $। आपको भी पता है i प्लस जनरेट हो नहीं सकता है। क्यों? कैसे जनरेट होगा? i के बाद प्लस i जो है फ्री आता है, i प्लस जनरेट नहीं हो सकता। तो आप जरा देखते हैं कैसे चलेंगे। ऐसे ही चलेंगे, हम मेन से चलेंगे, ई को कॉल करेंगे, एल इज इक्वल्स टू $, करेंगे। एल जो है हमारा इनिशियली गेट केयर है। इफ एल इज इक्वल्स टू $, ठीक है, ई को कॉल कर देंगे और फिर इस लाइन पे आना है। तो मेन में तो हम फिर से M4 पे ही आएंगे, तो ये वाला रिकॉर्ड तो ऐसे का ऐसा ही आ जाएगा, कोई चेंज नहीं। नेक्स्ट आते हैं, जब हम इस लाइन पे आए तो हम ई पे आए। ई के बाद हमने चेक किया इफ एल इज इक्वल्स टू आई, बिल्कुल आई है, क्योंकि हमारा एल जो है हम यहां पर ही पॉइंट कर रहा है। एल क्या आई के बराबर है? अगर एल आई के बराबर है तो मुझे क्या करना है? मैच आई करना है और ई डैश को कॉल कर देना। मैच हो गया आई, तो मतलब ये जो मेरा पॉइंटर है यहां पर मूव कर जाएगा। पॉइंटर जो है मेरा यहां मूव कर जाएगा, इनपुट पॉइंटर। ठीक है, इनपुट बफर में रखा हुआ है मेरा इनपुट, तो ये यहां पर मूव कर दिया। प्लस पे हूं मैं, प्लस पे होने की वजह से
प्लस पे हूं मैं और यहां पर मैच आई हो चुका है, ई डैश को कॉल किया, ई डैश को कॉल किया तो मेरा रिकॉर्ड क्या बनेगा, ई के अंदर मुझे E6 को इंप्लीमेंट करना है, यही रिकॉर्ड बनेगा। अब मैं गया ई डैश पे, ई डैश पे मैं जैसे ही जाऊंगा, एल क्या मेरा करंट करेक्टर प्लस है, बिल्कुल है। अगर करंट करेक्टर प्लस है तो मैच प्लस करो, मैच प्लस का आंसर आएगा यस, एंड माय इनपुट करेक्टर विल मूव ओवर हियर विच इज डॉलर। इनपुट करेक्टर मेरा कहां मूव कर गया, डॉलर पे मूव कर गया। अगर मेरा इनपुट करेक्टर डॉलर पे मूव कर गया है तो मैं क्या देख पा रहा हूं, मेरा इनपुट करेक्टर डॉलर है। अब मैंने कॉल किया मैच आई को, मैच आई के पास गया, आई से डॉलर मैच नहीं हो रहा तो क्या हो जाता है, अगर मैचिंग नहीं हो पा रही है, इफ एल इज नॉट इक्वल टू टी दैट इज एल्स पार्ट, तो प्रिंट एफ एरर, यहीं से एरर प्रोड्यूस हो जाएगा। ये वाला पार्ट तो प्रोड्यूस ही नहीं होगा, यहीं पर एरर आ जाएगा। तो दिस पार्सर इज वर्किंग करेक्टली, हमने अपने एग्जाम्पल से भी देख लिया। सिंपल है, बहुत ही आसान तरीके से हमने ये पार्सर कंप्लीट कर लिया, कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। आप सिंपली इसको एक बार फिर से रिवाइंड करके देखेंगे, आप बहुत अच्छे समझ पाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया है, बहुत बहुत सिंपल पार्सर है। बाकी अदरवाइज जिस हिसाब से मैंने स्लोली आपको सारे नंबर्स देके बताए हैं, आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। यहां नंबर्स M1 to M6 हैं, यहां E1 to E6 है, यहां F1 to F9 है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन गाइस। हमने इस सेशन में क्या देखा, टर्मिनोलॉजी को समझा, एलएल का क्या मतलब है, दैट इज लेफ्ट टू राइट एंड लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। फिर हमने एलआर का मतलब समझा, दैट इज लेफ्ट टू राइट एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स। फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पार्सर्स देखा, जिसमें हमने देखा कि टॉप डाउन पार्सर्स क्या होते हैं, बॉटम अप पार्सर्स क्या होते हैं। टॉप डाउन पार्सर्स में हमने देखा दो तरीके के पार्सर्स, पार्सर्स विद बैक ट्रैकिंग एंड पार्सर्स विदाउट बैक ट्रैकिंग। विद बैक ट्रैकिंग में ब्रूट फोर्स अप्रोच है, वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। विदाउट बैक ट्रैकिंग में हमने देखा रिकर्सिव डिसेंट पार्सर, जो हमने आज कवर कर लिया। नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सर हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। बॉटम अप पार्सर्स में अगर हम जाएंगे तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर हम पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद हम एलआर पार्सर्स पढ़ेंगे, जिसमें LR0, LR, SLR1, LLR1 एंड CLR1 पार्सर्स आएंगे। ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस किया, बट आज हमने मोर स्पेसिफिकली हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच देखा और रिकर्सिव डिसेंट पार्सर को देखा। रिकर्सिव डिसेंट पार्सर में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, हर प्रोडक्शन के लिए हम इफ एल्स लिखेंगे, लेकिन हर वेरिएबल के लिए हम एक फंक्शन लिखेंगे, और उस वेरिएबल के लिए जितने प्रोडक्शंस हैं वो सारे के सारे इफ एल्स के अंदर लिखे जाएंगे या स्विच केस में लिखे जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन गाइस। ठीक है, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन विद सम डिटेल्स ऑन LR parsers, LL1 parsers. First and follow we'll discuss specifically, which is basically the basics for LL1 parser. ठीक है, right? So these are the details for next few sessions guys. I will see you guys in the next sessions with the details on first and follow. Thank you so much guys.